Welcome in my biology classes, students. In the previous classes, we have discussed about the zygote stage or zygote phase of the meiosis 1, that is prophase 1. And now we are going to discuss about the next stage, that is the pachytene. So the next stage is pachytene. So pachytene is also called pachynyma. Pachynyma. So what kind of the changes takes place during this pachytene? So after zygote, that is the pairing of the homologous chromosome, the next step, that is the recombination, that is the formation of recombinant. So for the formation of recombinant, the first point is there is a process of crossing over. So the crossing over takes place. Crossing over takes place. So what is the crossing over? The crossing over means the process in which the two non-sister chromatids of a homologous chromosome. So these are the two chromosomes in the form of tetrad, and these two are the non-sister chromatid. They approaches to each other during the zygote stage, and after that there is a physical exchange between these two non-sister chromatids of homologous chromosomes takes place. So ये जो दोनों non-sister chromatids हैं, इनके जो DNA segments हैं, ये physically exchange हो जाते हैं. इसी exchange को हम कहते हैं crossing over. So what is crossing over? The physical exchange of DNA segment between two non-sister chromatid of homologous chromosome is called crossing over. अब इस क्रॉसिंग ओवर से क्या बनेगा? क्रॉसिंग ओवर. एंड आफ्टर दिस क्रॉसिंग ओवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. सो आफ्टर दिस क्रॉसिंग ओवर the recombinant would be formed. Recombinant will form. Okay. So for the formation of recombinant, there are enzymes which is required. So this recombination called recombination. Okay. So recombination is an enzymatic process which requires enzymes, various enzymes. So कौन कौन से enzymes यहाँ काम करेंगे? सबसे पहले recombinase, that is recombination हो रहा है तो यहाँ पे recombinase enzyme हो जाएगा. recombinase enzyme. और कौन सा एंजाइम हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम. और एक और एंजाइम यहाँ पे काम करेगा जिसको हम कहेंगे लाइगेज एंजाइम. सो यहाँ पे 3 एंजाइम्स का काम होता है. एंडोन्यूक्लियस का काम होता है क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना. टू ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए. तो डीएनए में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से एक डीएनए की चेन का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करने का काम करेगा. लाइगेज का क्या फंक्शन होता है? लाइगेज का काम होता है देयर इज अ ज्वाइनिंग, फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड.
So to ligate, to join the two nucleotide, to join two nucleotide, to join two nucleotide by forming phosphodiester bond, phosphodiester bond. तो बॉन्ड जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच का बॉन्ड पहले क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस. अब यहाँ पर एक्सचेंज, अब ये दोनों फ्रेगमेंट क्या होंगे, पहले तो दोनों के बीच में क्या होगी, निकिंग होगी, ब्रेकिंग होगी, और फिर दोनों एक्सचेंज होंगे, और एक्सचेंज होने के बाद लाइगेट होंगे. तो ये क्या कराएगा, रिकॉम्बिनेज क्या कराएगा, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट. तो बेसिकली यहाँ पर 3 एंजाइम्स होते हैं जो मिलकर के इस प्रोसेस को पूरी तरह से परफॉर्म कराते हैं. दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेज एंजाइम. इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज. दूसरे अकेले ये काम नहीं करेगा, इसके साथ साथ एंडोन्यूक्लियस भी काम करेगा और लाइगेज भी काम करेगा. तो यहाँ पर आफ्टर दिस, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, और ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है और इवोल्यूशन होता है. तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा, रिकॉम्बिनेंट, सो इस रिकॉम्बिनेशन से क्या हो जाता है, वेरिएशन होता है, और वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो इन दिस डायग्राम वी विल सी how this recombination takes place. So this is the nucleus, that is nuclear membrane, and this is the centriole, centrosome, and in the last diagram we have seen there is a pairing of the homologous chromosome. तो यहाँ पे हम इसको पेयरिंग को टेट्राड फॉर्म में शो करेंगे, जैसे लास्ट डायग्राम में हमने शो किया था. सो वन शुड बी हॉलो एंड वन शुड बी सॉलिड. सो दिस इज द वन क्रोमोसोम एंड देयर इज अ पेयरिंग. देखिए यहाँ पर हम इसको पेयरिंग करा रहे हैं, तो इसका एक सेगमेंट ऐसे दिखाएंगे, दिस इज द सेकेंड वन. यहाँ पर हम एक इसके साथ क्रॉस कराएंगे और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा. तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका डायग्राम आएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज अ पेयरिंग. अब यहाँ पे फिजिकल एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज द वन, दिस इज द हॉलो वन क्रोमोसोम, और इसका जो अदर पेयर है इस तरह से. सो दिस इज द अदर पेयर. ओके. सो यहां पे क्या होगा, दिस इज द एंदर. सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर. ओके. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर. और यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं. सो ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म. स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहते हैं कियास्मा, या फिर कियास्मेटा. So what is the chiasma? This is the point of crossing over. So chiasma क्या होता है? What is the chiasma? This is the zygote packaging stage. This is the packaging stage. Okay, packaging stage. So ये हमने packaging stage बनाया है stage. और chiasmata का मतलब क्या होता है? This is the point of crossing over. So जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कियास्मेटा. तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो गए. सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ,
क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द डीएनए सेगमेंट, यानी जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में क्या होगा, दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होंगे, फिजिकल एक्सचेंज होंगे, उसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो यहाँ पर अच्छा कोई भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दोनों ही है। सपोज यहाँ पर हमारे पास दो क्रोमैटिड्स हैं, यानी टोटल 4 क्रोमैटिड्स हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम से। सो मे बी यहाँ से भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, इसका क्रॉसिंग ओवर यहां से भी हो सकता है, या इसका क्रॉसिंग ओवर यहां से भी हो सकता है, या इन दोनों का यहां से भी हो सकता है। एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यानी कि करीब करीब 50-50 पॉइंट्स पे भी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, इसलिए वेरिएशन क्या बनेगा ये कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के वेरिएंट्स बनते हैं, अलग अलग तरह के रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। सो कोई भी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है फिजिकल एक्सचेंज होना। तो यहाँ पर जो डीएनए सेगमेंट है उनका क्या हो रहा है, फिजिकल, जो डीएनए सेगमेंट है उनका फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। आफ्टर दिस क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होगा, और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, जो कि फिजिकल एक्सचेंज कराएगा। एंडोन्यूक्लियस जो कि क्या करेगा, ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि डीएनए के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि पहले ब्रेक होगा उसके बाद एक्सचेंज होगा, उसके बाद दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस जो कि ब्रेक करेगा, रिकॉम्बिनेज जो कि चेंज कराएगा, एंड द लास्ट दैट इज लाइगेज जो कि वापस से दोनों सेगमेंट्स को जहां जिसका है वो जोड़ेगा। ठीक है, तो टू ज्वाइन द टू न्यूक्लियोटाइड्स बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ये आपका क्रोमोसोम है जिसके 2 क्रोमैटिड्स हैं, दूसरा ये आपका सॉलिड वाला पार्ट है, दिस इज द सॉलिड वन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस ओवर हो रहे हैं। अब इसका फ्रेगमेंट इसमें आ जाएगा और इसका इसमें आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, दिस इज द वन, और यहाँ पर ये जो पार्ट हो जाएगा उसका कुछ हिस्सा इस पार्ट का सॉलिड वन का आ जाएगा, कुछ इस तरह से। दूसरे का किस तरह दिखाई देगा, अब ये आपका सॉलिड है, दिस इज द सॉलिड वन, ये आपका सॉलिड है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो आपका पहले वाले क्रोमोसोम का आ गया है। तो यहां पर इस तरह से ये जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, सो इस तरह से बहुत तरह के रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्मेशन होते हैं, और इस वजह से जो एक इवोल्यूशन वाला प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाता है। सो दिस इज द स्टेज, दिस इज कॉल्ड पैकेटीन स्टेज. In the next video we will discuss about the diploidine stage. So thank you so much.